been a member of the UP Public Service Commission, Prayagraj, from 2004 to 2010. He has more than 25 research papers to his credit, and his areas of interest are Indian administration, Indian government and politics, and political parties. Today he will speak on the changing dimensions of center-state relations in India. So, sir, the stage is all yours. Thank you. इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? ये first of all, I would like to congratulate and express my gratitude to my young colleagues who are very enthusiastic, very energetic, and very academically very prone. And in fact, they suggested, Pitambar, Smriti, everybody, all of them, they suggested that since 19 people have joined this department, we must start a faculty lecture sleeve. But I didn't know at that point of time that it will fall on my shoulders, that you are innovative. So, लेकिन ये initiative इनको जाता है, इन्होंने कहा, तो I am very thankful to all of you who have joined this thing. There are signs of the department, my dear friends and students. Very good signs of the department, not only your huge presence, but also the initiative by my academic colleagues. So today, I will be speaking on the changing dimensions of center-state relations. Bilingual, actually? Yes. So, basically, I will divide my lecture in three parts. The first part will be backgrounder, definition, introduction, etc. Second part will be the constitutional arrangement. संवैधानिक व्यवस्था क्या है भारतीय परिप्रेक्ष्य में केंद्र राज्य संबंधों के लिए एंड थर्ड पार्ट which I will focus more basically on the third part and that third part आवाज़ में पीछे basically the third part will be the changing dimension, the dynamics of center-state relations. To start with, whenever we raise this issue that what is the center-state relation, it means it clearly proves one thing that we are talking of a federal setup. We are not talking of, we are not concerned about the unitary setup, unitary form of government, because center-state relation forms an important part only in the federal form of government. So first thing is clear. Now the question arises: what is federalism? है क्या? संघात्मकता है क्या? आप जैसे मैं आपसे पूछूं कि संघात्मकता और एकात्मकता में differentiate करना one line. So how do you differentiate between federal government and unitary government? And one line, don't answer, I will answer on your behalf. One line definition is, it is basically determined by the relationship between executive and legislature. Sorry, it is basically determined by the devolution of powers, the distribution of powers, okay, the decentralization of power. So on that basis, you define this a federal government and it's a central. It's a unitary government. Number one. Number two. So far as federalism is concerned, if you try to define what is federalism, so federalism, the definition, the common definition, not Rupesh definition, but the common definition, it connotes everything, it encompasses everything, and that is basically that federalism is a political mechanism. Mind it, federalism is a political mechanism to control multiple territorial entities or personalities within one constitutional framework. So now there are three parts of this definition. Federalism is a political effort or exercise, number one. Number two, to control multiple territorial personalities, and number three, within one constitutional framework. Is it right? Getting my point now? Yes. बोलो भाई, संघात्मकता जो है वो बेसिकली मूलतः वो बहु या विविध रूपी जो 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 व्यक्तित्व है, जो हमारा व्यक्तित्व मतलब कि लोग नहीं, जो हमारा लीगल एंटिटी जो है, उनको एक संवैधानिक फ्रेमवर्क में ढांचे में बांधने का ही कवायद है. क्यों?
क्यों ये कवायद की जाती है? अदरवाइज either the multiple territorial entities will fall apart or they will opt for some other course of action. In both the cases, jeopardizing their entity. In both the cases, अगर वो डिसइंटीग्रेट करते हैं तो भी, और अगर किसी दूसरे रास्ते पे जाते हैं तो भी, दोनों रास्ते में वो अपने ही अस्तित्व पर नुकसान करेंगे। इसलिए फेडरलिज्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करें, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म की बात करें तो देखिए दो तरह, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, जैसे फेडरल गवर्नमेंट जब फॉर्म होता है तो दो तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। एक हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फॉर्मेशन, दूसरा हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फॉर्मेशन। हिंदी थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। एक हो गया केंद्राभिमुखी सेंट्रीपिटल, ठीक है, और एक हो गया अब केंद्रीय, जो तो सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सेंट्रीपिटल फॉर्मेशन। एंड इंडियन केस में क्या है? सेंट्रीफ्यूगल है। क्यों सेंट्रीफ्यूगल है? क्योंकि यहाँ पहले एक ही संविधान से पहले केंद्र की संरचना हुई और उसी संविधान से राज्यों की संरचना हुई। लेकिन अब यहाँ दो बातों में फिर आप बोलता हूँ, नो कॉन्स्टिट्यूशन इज 100% फेडरल। ओके, इफ 100% फेडरलिज्म इट विल टेंड टू डिसइंटीग्रेट। एंड सेकेंडली, every federal constitution has encountered initial hiccups, initial imbalances, initial fractions. Take the example of USA. USA का फॉर्मेशन हो गया, संविधान बन गया, लेकिन डू यू रिमेंबर कि अर्ली 19th सेंचुरी में संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर जुडिशियल इंटरवेंशन ना होता तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका के रूप में रह पाता? आपको याद होगा सिविल वॉर हुआ वहां, और जुडिशियल सर जॉन मार्शल जो थे फेमस जज, उनके समय के अर्ली 19th सेंचुरी के 3 जजमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीनों जजमेंट जैसे मैकलॉक वर्सेस मैकलॉक वर्सेस मैरीलैंड, गिब्बन्स वर्सेस कॉगलन एंड मार्बरी वर्सेस मैडिसन, ये 3 जजमेंट आए। और इन तीनों जजमेंट में यूएसए का जो लूज फेडरेशन था, क्योंकि यूएसए में जो बना संविधान, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फेडरल लिस्ट बना दी, और जो भी फेडरल लिस्ट में था वो सपोज करिए गया कि राज्यों को चला गया। ठीक है, तो एक तरह से जो क्लासिकल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं यूएसए का, वो यूएसए का क्लासिकल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, उसमें एक इम्बैलेंस था। इम्बैलेंस ये था कि वहां राज्यों को पर्याप्त ऑटोनॉमी दी गई शुरू से, और उस ऑटोनॉमी का प्रभाव था या इम्पैक्ट था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिविल वॉर हो गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में बात पर राज्यों को दंगा लगाना शुरू किया। तो थैंक्स टू देयर जुडिशरी जिसने उस इम्बैलेंस को रेक्टिफाई किया, उस इम्बैलेंस को करेक्ट किया, और आज संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान फेडरल फॉर्म में चल रहा है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हमने फेडरल लिस्ट, हमारा मॉडल जो कनाडा के ऊपर, आप सबको पता है कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन में भी 3 लिस्ट है, हमारे यहाँ भी 3 लिस्ट है, और हमने कैनेडियन मॉडल को अपनाया। हमने सीधे डिवोल्यूशन ऑफ पावर में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट बना के काम किया। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हमको थोड़ा बैकग्राउंड ऑफ इंडियन फेडरलिज्म उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मैं मानता हूँ 1861 में जो एक्ट आया, तो 1861 का एक्ट था वो क्या था? उसने जो 1833 के एक्ट से जो प्रोविंशियल पावर्स को सीज कर लिया गया था उसको रिस्टोर किया, ठीक, और प्रोविंसेस क्रिएट किए 1861 के एक्ट ने, कि प्रोविंसेस क्रिएट करके फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेशन प्रोविंसेस वर क्रिएटेड आफ्टर 1861। 1892 provided that provinces, even they could, with the prior permission of the Governor General, they could alter central cases, central act if they were affecting their province. So 1892 पे किया. Then comes the Act of 1919, Government of India Act 1919, which was a major breakthrough,
in the field of federalism. Territoriality was introduced. 6 subjects were transferred to states, provinces, and 9 subjects were kept under reserved subject or as reserved subject under the purview of Governor General. So, Government of India Act 1990, and in the same act there was a provision that a commission, an independent commission, will be appointed to see, to oversee, and to suggest how to evolve a federal setup in future, and that is why Simon Commission was appointed. It was laid down in the Act of 1990 that within 10 years an independent commission will be appointed. अब Simon Commission के पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 जो आता है उसमें जो भी जो मतलब शुरुआती जो उसके रुझान थे या शुरुआती जो उसके परिणाम थे, फिर नेशनलिस्ट अगर तो साइड बाय साइड चल ही रहा था हमारा, तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को शुरू में तो थोड़ा उत्साह से लिया, फिर बाद में उनका मोह भंग होना शुरू हुआ। उसी बात 1925 में डॉक्टर एनी बेसेंट केम आउट विद अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन on the pattern of United States of America, and she named her constitution United States of India, USA. Instead of USA, she called her state constitution or model constitution United States of India. 1927 साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ आप सबको पता ही है, क्योंकि उसमें कोई भारतीय नहीं था, जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय एक भारतीय सदस्य थे हाउस ऑफ कॉमन्स में, लेकिन उनको भी नहीं इंक्लूड किया गया। साइमन कमीशन का विरोध शुरू हुआ, लेकिन साइमन कमीशन की विशेषता ये थी, फॉर द फर्स्ट टाइम he suggested a federal polity. By that time there was already 2 types of India, British India and Native India. British India, which was directly controlled by Governor General and Viceroy, same, and native states, they were controlled by princes or the rulers of those states. So British India and princely states को मिला के उसने कहा princely states were known as native states and British states were called Indian provinces or Indian states. तो उन्होंने पहली बार साइमन कमीशन ने सजेस्ट किया कि दोनों को मिलाकर एक फेडरल पॉलिटी होगी, और इसलिए हम विरोध जरूर करते हैं साइमन कमीशन का, लेकिन लाइक एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, वैसे ही साइमन कमीशन का इतना जरूर योगदान है कि उसने एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की नींव रखी कि कैसे हाउ टू गो अबाउट इट। बट साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, and instead they founded a committee under the presidency of Motilal Nehru, which is known as Nehru Report. और नेहरू रिपोर्ट आती है 1928। फिर 1929 में बटलर कमीशन आता है, बटलर कमीशन की रिपोर्ट आती है, और उसके बाद इरविन का अनाउंसमेंट होता है, लॉर्ड इरविन का अनाउंसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था। लॉर्ड इरविन ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज सीरियसली थिंकिंग टू प्रोवाइड अ डोमिनियन स्टेटस टू इंडियन, I mean India after independence. India will be free from the shackles of Britain, but they will enjoy dominion status. Means there is no question of sovereignty. तो आप कहते हैं ना हमारे our country is a sovereign nation. There was no question of sovereignty. It will enjoy dominion. In reaction to this announcement, you must have heard about the famous declaration of Purna Swaraj, है ना? पूर्ण स्वराज आया कब? 26 जनवरी 1930 को। इरविन का डिक्लेरेशन आता है अक्टूबर 1929 को। उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने कहा कि नथिंग लेस देन पूर्ण स्वराज और फुल फ्रीडम इज एक्सेप्टेबल टू अस और एक्सेप्टेड कर। तो 1930 में जब इनका पूर्ण स्वराज आता है तो 30 और 32 के बीच में यू फाइंड इट इन द बुक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री, देयर आर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है? एंड उसके बाद ये सारे एक्सरसाइज टर्मिनेट कहाँ करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो बेसिकली द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या मिला? पहली बार एक फेडरल सेटअप की हमने बात की, पहली बार हमने फेडरल इंस्टीट्यूशंस की बात की, आरबीआई होगी, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, ये सारी बातें हुई। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से it became the friend, philosopher and guide of the constitution. So almost 60% of our constitution was borrowed from Government of India Act 1935. अब 1935 के बाद घटनाक्रम जल्दी चलने लगता है, राज्यों में चुनाव होते हैं 1937 में, फिर कांग्रेस के
वो जो चुनाव जीती है कांग्रेस ने, उसके बाद इस्तीफे हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 1942 में फिफ्थ मिशन आता है। फिफ्थ मिशन आगे कहता है कि भाई राइट टू सक्सीड विल बी ग्रांटेड दोज फेडरेटिंग यूनिट्स, और जो भी राज्य संघ में आ रहे हैं उनको हम अलग होने का, पृथक होने का अधिकार देते हैं, ठीक है। वो भी भारतीयों को, या राष्ट्रीयता जो आंदोलन थे वो भी नहीं स्वीकार था उनको। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन 3 मेंबर कमेटी थी, और क्रिप्स उसमें भी था, क्रिप्स उसमें भी था, स्टेफन क्रिप्स था, पैट्रिक लॉरेंस था और एनी रेडिंगटन था, वो तीनों थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक फेडरल सेटअप तो होगा बट सेंटर विल बी वीक। एक कमजोर केंद्र की अवधारणा जो है वो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में डाली, और so much so कि यूनियन बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड कंपल्शन ऑफ मुस्लिम लीग, बाय दैट टाइम मुस्लिम लीग जो थी वो लगभग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो चुनाव हुए, तो उसमें वो चुनाव जो था वो डुअल वोटरशिप का था, डुअल इलेक्टोरल सिस्टम के था। मुस्लिम्स और हिंदू की सीट्स अलग अलग थी, तो 90% ऑफ मुस्लिम सीट्स पे मुस्लिम लीग जीती, ठीक है। तो दैट एम्बोल्डेंड देयर एस्पिरेशन। जितना जो कह रहा था बहुत दिन से कि भाई इनको अलग राष्ट्र चाहिए, अलग राष्ट्र चाहिए, तो उसने उसको सीमेंट कर दिया, उसने उसको प्लास्टर चढ़ा दिया उसकी बात को, हाँ ये सही बात है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो यूनियन पावर्स कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी इस बात को मान लिया था कि ठीक है भाई सेंटर हो, फेडरल सेटअप हो, बट सेंटर विल बी वीक, और उस वीक सेंटर के पास सिर्फ 4 विभाग होंगे, फॉरेन होगा, डिफेंस होगा, कम्युनिकेशन होगा और अलाइड फाइनेंशियल पावर्स होंगी। अलाइड फाइनेंशियल पावर्स में जो इन तीनों विभागों को चलाने के लिए जिनकी आवश्यकता है। तब क्या होता है, देखिए एकदम से डेवलपमेंट क्या हुआ, फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव फेल होता है, लॉर्ड गवर्नर को हटा दिया जाता है, उनकी जगह आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन ने आते ही एक प्रस्ताव रखा 3 जून 1947, जिसको हम माउंटबेटन प्लान के नाम से जानते हैं। We know it as, commonly we know it as माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान ने कहा कि भारत स्वतंत्र होगा विदिन अ ईयर, और लेकिन उसके साथ साथ एक और राष्ट्र स्वतंत्र होगा। तो 2 बातें क्लियर हो गई कि एक तो फ्रीडम इज ग्रांटेड, इट इज गारंटीड, दूसरा कि पाकिस्तान विल हैव अ सेपरेट नेशन रूट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो जो ये अनाउंसमेंट हुआ, तो मुस्लिम लीग जो तब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक आप कह सकते हो टग ऑफ वॉर चल रहा था कि what kind of federal government we should have, so that came to an end। वो इससे भी पता चलता है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान, 6 जून 1947 को वही सेम यूनियन पावर्स कमेटी की बैठक होती है जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ये मान चुके थे कि हाँ एक वीक सेंटर वाला फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आना चाहिए। उसी 3 जून 1947 की घोषणा के बाद सेम यूनियन पावर्स कमेटी मिलती है, और वो मिलने के बाद 4 चीजों को तय करती है विदिन 3 डेज। आप एक तरह से समरसॉट कह सकते हैं, मतलब जो पहले से बिल्कुल तय था उसको तुरंत उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया, या उसको आप कह सकते हो कि उसको मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया विल इमर्ज एज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट विद अ स्ट्रांग सेंटर। अब आप देखिए पूरा पलट गया, सिनेरियो पूरा पलट गया। जो पहले कह रहे थे वीक सेंटर होना चाहिए, अब वो कह रहे हैं तो पूरा सिनेरियो पलट गया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा बट सेंटर स्ट्रांग होगा। सेकंड उसने कहा कि देयर विल बी 3 लिस्ट, तो ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की। तीसरा पॉइंट उन्होंने एग्री किया कि द पोजीशन ऑफ नेटिव स्टेट्स विल बी इक्वल टू दैट ऑफ इंडियन स्टेट। और चौथा कहा कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर विल बी कोटर्मिनस विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ सेंटर। मैं चारों को फिर से बता हिंदी बता। पहला कहा कि संघात्मक प्रशासन होगा लेकिन केंद्र मजबूत हो। दूसरा कहा कि 3 सूचियां होंगी। तीसरा कहा कि राज्यों ब्रिटिश प्रांतों का और भारतीय प्रांतों सॉरी नेटिव स्टेट देशी रियासतों का स्थान भारतीय प्रांतों के समकक्ष होगा। और चौथा कहा कि केंद्र के कार्यपालक शक्तियों का विस्तार केंद्र के विधायी शक्तियों के सहवर्ती होगा, कोटर्मिनस होगा। मतलब जहां केंद्र की विधायी शक्तियां समाप्त होंगी वहीं केंद्र की कार्यपालक शक्तियां भी समाप्त होंगी।
ये 4 चीजें कर दिया। उसके बाद जुलाई में सेकंड रिपोर्ट देती है यूनियन पावर्स कमेटी टू द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसमें कहते हैं कि द साउंडेस्ट फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। दूसरा हो गया रेगुलेशन। फिर लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा कैच ये है कि कहीं भी वर्ल्ड फेडरेशन हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 clearly says that India, that is Bharat, shall be union of states. Why this union of states? ऐसा तो नहीं था कि गलती से हो गया, इतने बड़े-बड़े लीगल यूनियन थे। देखिए, फिफ्थ मिशन ने भी, कैबिनेट मिशन ने भी, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने भी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जानते हैं आप लोग? कितने लोग जानते हैं आप बताइए? इतनी बड़ी क्लास में तो हाई संख्या में नहीं। अरे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारा पेपर है उसका प्रिकर्सर है, ठीक है? उसके लिए जो भी रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया, तो इन्होंने यूनियन शब्द का प्रयोग किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको एक्सप्लेन किया व्हाई वर्ड यूनियन हैज बीन यूज्ड। उन्होंने कहा कि अनलाइक यूएसए द स्टेट्स हैव नॉट फॉर्म्ड द सेंटर, ओके, एंड अनलाइक यूएसएसआर, इधर यूएसएसआर, नाउ इट डजंट, आई मीन इट इज नॉट इन इधर USSR, unlike USSR, we have not granted the right to secede. Okay? On 2 counts, word union was used in Indian Constitution. Number 1. Number 2, even right to secede में बाद में 16th Amendment से, 16th Constitutional Amendment से, even advocacy of separatism has been, I mean, it has been treated as an act of treason. अगर आप कोई एडवोकेसी भी करते हैं, अलगाववाद की बात भी करते हैं, तो उसको राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में माना जाएगा। तो थोड़ी डिफरेंट है या 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। अब जो इंडियन फेडरलिज्म इमर्ज करता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 100% कोई राज्य फेडरल नहीं हो सकता। इंडियन फेडरलिज्म के पास क्या कंपल्शन है वो जानने की जरूरत है। व्हाई हैव वी क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट। And why have we created this kind of constitutional arrangement which it attracts so many nomenclatures? Somebody calls it quasi-federal, somebody calls it federal in form but unitary in spirit, somebody calls that federal in structure but unitary in spirit. So all these things क्यों? देखिए, कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जिन फैक्टर्स को आपको समझना चाहिए। वो फैक्टर्स एक गाइडिंग फोर्स के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम करते हैं। वो फैक्टर से पहला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, दूसरा स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, तीसरा सोशियो इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग, चौथा जो नेशनल स्ट्रगल एंड इमर्जेंस ऑफ ऑल इंडिया लीडरशिप, जो राष्ट्रीयता आंदोलन के फलस्वरूप जो हमारा वो आया करता है, जो विभाजन होना चाहिए, वित्तीय सदन की उपस्थिति होनी चाहिए, तो सब तो है इंडिया में। एवरी एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट? भाई आपके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके पास रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब which constitution is known as rigid constitution, where normal law making process is differentiated from amendment process. Okay? जैसे रिटन में क्या है, रिटन में जो नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसी से आप अमेंडमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि वहां संसदीय संप्रभुता है। आप क्या संविधान की जरूरत है? आपने एक आर्टिकल 368 दिया और 368 में आपने कहा भाई दिस इज हाउ यू कैन अमेंड द सिचुएशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी है, 3 लिस्ट ऑफ आई मीन पावर है, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, स्वतंत्र वो इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी है, एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दैट जुडिशरी इज बेसिकली द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद आपके पास राज्यसभा के रूप में द्वितीय सदन है। लेकिन इन सब के साथ आप थोड़ा तह में जाएंगे, थोड़ी सी बिलो द बिलियन कहते हैं ना, if you go below the billion, then you will find out the true picture of Indian federalism. I will start one by one. I will start devastating every point. Like constitution is supreme, but much of the constitution depends upon the parliamentary majority, isn't it? संसदीय संप्रभुता के ऊपर संविधान की सर्वोच्चता निर्भर करती है। हमने देखा पीछे 42वां संविधान संशोधन क्या था? 42वां संविधान संशोधन क्या था भाई? वही काम। तो
ये संविधान की समरूपता आप कहते जरूर हो, लेकिन संसदीय समरूपता अगर प्रचंड बहुमत है तो समरूपता नहीं आती। संसद में अगर प्रचंड बहुमत है लोकसभा राज्यसभा में तो आप संविधान के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा फिर जो आपका अमेंडमेंट प्रोसीजर है, तो अमेंडमेंट प्रोसीजर में 3 प्रोसीजर दिए हुए हैं, 1 2 3। तो जो पहला वाला है, जो द मोस्ट आप कह सकते हो डेट्रीमेंटल टू फेडरल सेटअप है कि यू कैन ऑल्टर, चेंज, क्रिएट, डिलीट दिस बाउंड्री ऑफ स्टेट। आप नया राज्य बना सकते हैं, आप राज्य को विलीन कर सकते हैं, आप उनकी बाउंड्री बदल सकते हैं। एवरीथिंग कैन बी डन विदाउट making it a formal amendment. It's an informal amendment you can say. फिर 2 और 3 जो बाकी दोनों है उसमें भी अमेंडमेंट के जो प्रोसेस है, ये तुम्हारे राज्यों का कोई से नहीं, स्टेट्स हैव नो राइट और नो से अमेंडिंग प्रोसेस। तो कुल मिलाकर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मान सकते फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। स्पेशली आप यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन देखो, कितने अमेंडमेंट्स हुए, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो कितने अमेंडमेंट हुए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर। संयुक्त राज्य अमेरिका के 200 साल से ज्यादा के संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए वो आप देख लो, और भारत के 75 साल के संविधान में कितने अमेंडमेंट हुए, उससे क्लियर हो जाएगी पिक्चर कि कौन सा संविधान, मतलब संविधान की शक्ति क्या है, रिजिडिटी क्या है। फिर आइए तीनों लिस्ट पे आइए, थोड़ा जल्दी करना है, ज्यादा हो रहा है। तीन लिस्ट पे आइए, तो आप सबको मालूम है कि यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज एंड लेजिस्लेट। स्टेट लिस्ट पे राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ परिस्थितियां हैं जिन विशेष परिस्थिति में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है स्टेट लिस्ट, और फिर कंकरेंट में भी स्टेट का ही प्रीडोमिनेंस है। अब इससे हट के आप आइए, उसके अलावा भी आप देखिए तो स्टेट लिस्ट में कम से कम 13 एंट्रीज ऐसी हैं, अब मैं उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, 13 एंट्रीज ऐसी हैं जिसमें 9 यूनियन लिस्ट से और 4 कंकरेंट लिस्ट से गवर्न एंड डिटरमाइन होती है। वहां भी स्टेट लिस्ट में ये प्रवृत्ति घुसी हुई है। तो एक तरह से लिस्ट पे भी देखिए तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट साफ दिखाई देता। फिर इम्पार्शियल जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सभी है, लेकिन कई बार जुडिशरी के भी डिसीजन को पलट देता है। शाहबानो केस का फेमस एग्जांपल हमारे साथ है। ठीक, अब आप आगे जो द्वितीय सदन हमारे पास है राज्यसभा, इट इज अनलाइक सेनेट। सेनेट जिस तरह की स्ट्रॉन्ग है वैसे राज्यसभा के पास वैसी शक्तियां नहीं। तो इस आधार पर भी आप अपने फेडरल फीचर्स को क्वेश्चन कर सकते हो, और इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे फीचर्स हैं जो प्योरली मिलती ऑल इंडिया अकाउंटिंग सिस्टम है, ऑडिट एंड अकाउंटिंग सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड आपके इलेक्शन सिस्टम है पूरा, एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है, रोल ऑफ गवर्नर है, इमरजेंसी प्रोविजन है, सो एंड सो फॉर्थ। एंड मोस्ट I will call very negative factor, and that was present in the form of planning commission. In course of time, planning commission ने और planning commission के एटीट्यूड ने कितने तरह के नॉमेनक्लेचर पैदा किए फेडरलिज्म में, वो भी बताते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में हमारे फेडरलिज्म आया। अब उसको मैं थोड़ा जल्दी पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि जो डिफरेंट फेजेस हैं, इस तरह से डिफरेंट फेज में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो फेडरलिज्म है वो कौन सा नाम ग्रहण करता है। जैसे पहली चीज शुरुआत जब हुई तो सबने कहा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। रैंडल लॉसी ने बड़ी तारीफ की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। 1950 में संविधान लागू हुआ, तो उसी के बाद जो आपका आ जाता है क्या, योजना आयोग। अब योजना आयोग ने एक तरह से संविधान के आप जो संघात्मक व्यवस्था है उसका कहीं ना कहीं आगाज हुआ। संविधान में सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशन को जो एजेंसी थी वो थी आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जब से काम शुरू हुआ तो योजना आयोग का क्या हुआ, योजना आयोग वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, उनका थिंक टैंक था, उनका ब्लू आइड बॉय था। तो जो कुछ भी योजना आयोग करने लगा तो ग्रेजुअली दे कैप्चर्ड 2/3 ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन and only 1/3 of financial situation was left for finance commission. तो पहला तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से पहला जो डिफरेंस आता है, by the time second 5-year plan started,
तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से इसका नाम बदल के कर देते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। क्यों बार्गेनिंग फेडरलिज्म? कि जिस राज्य में ज्यादा महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री थे वो, और जो जो सजातीय मुख्यमंत्री मतलब उसी समाज के लोग, तो वो जाते थे और योजना आयोग से अपने मनचाहे अपने लिए लेकर आने लगे। एक तरह से लेन देन का, जो जिसको बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं, लेन देन का या सौदे का संवाद आपको दिखाई देगा। तीसरा फेज आता है जिस फेज को हम कहते हैं बेगिंग बोर्ड फेडरलिज्म, क्योंकि उस समय तक जाते जाते 80 तक आते आते सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होने लगी, ठीक है, एंड दे वर नॉट इन ए पोजीशन टू रोल आउट द पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ऑफ स्टेट्स। जो राज्यों में लोकप्रिय नीतियों के नाम पे जो 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 लोक लुभाऊ नीतियां आती थी, जिनको आजकल लेवड़ी कल्चर या फ्रीडी कल्चर या स्वीटनर कहते हैं, तो जो आती थी उसके लिए राज्यों को बराबर योजना आयोग का कुछ न कुछ अंशदान चाहिए था। तो अब वहां पर योजना आयोग ने उनको पॉलिटिकली जो है दे स्टार्टेड ट्विस्टिंग देयर आर्म्स, और वहीं से एक तीसरा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ बेगिंग बोर्ड फेडरलिज्म का, कि जो मुख्यमंत्री जाते थे राज्यों के और अपना कटोरा लेके और कुछ भिक्षा पात्र में लेके आने लगे। चौथा फेज आता है या चौथा मॉडल आता है हमारे सामने बेगिंग बोर्ड फेडरलिज्म के बाद, कि जब योजना आयोग ने एक तरह से सुपरवाइजरी फेडरलिज्म का रोल ले लिया कि आप ले जाते हो भाई, कितना पैसा ले जाते हो, कितना देते हो, कहाँ खर्च करते हो, इसे बताइए। तो पर्यवेक्षण का समाजवाद हमारे सामने दिखाई देता है, जो कि संघात्मकता या शास्त्रीय संघात्मकता से बिल्कुल उलट है। और इस पर्यवेक्षण के समाजवाद के बाद जो 21वीं शताब्दी में जब इंटर करते हैं, तो एक न्यू टाइप ऑफ फेडरलिज्म है इमर्ज, एंड दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म, प्रशासनिक संघवाद। अब राज्यों को जैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम काट दिया गया, उनकी संख्या में कमी की गई, उनको बताया गया कि अब आप जैसे 10% या 90%, 10% राज्यों को खर्च करना होता था, 90% केंद्र को खर्च करना होता था। उससे आपने पलटना शुरू किया, आपने कहा नहीं नहीं इसमें कटौती करो, उसमें कटौती करो, द काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म इमर्ज। उसके बाद जीएसटी आती है, और तो जीएसटी में एक नया फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म आता है जिसको हम कंसेशनरी फेडरलिज्म कहते हैं। कंसेशनरी फेडरलिज्म क्यों? आपने राज्यों को तो पूरा रोक दिया उनका टैक्स, जो भी टैक्स उनका था, और राज्यों को समय पर आप उसका उनका अंशदान नहीं देने लगे। तो एक तरह से मतलब अजीब सी स्थिति होगी कि राज्य जो है बिलबिला रहे हैं अपने अंशदान के लिए, और केंद्र सरकार जो है वो जीएसटी को लेकर बैठी हुई है, वो कह रही है कि राज्य वसूल के नहीं दे रहे। तो एक तरह से कंसेशनरी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। कोविड के दौरान एक फेडरलिज्म का फॉर्म दिखाई देता है जिसको हम हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहते हैं। इसको क्यों हॉरिजॉन्टल फेडरलिज्म कहते हैं? जिस तरह की आपदा आई तो आपने देखा होगा कई राज्यों ने सप्लाई चेन के लिए वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक ग्रीन लेन तैयार किया, मतलब किस तरह से वैक्सीन पहुंच जाए टाइम से, और बिल्कुल ट्रैफिक रोक के फिर जिन मजदूरों को लाने की व्यवस्था की गई। थोड़ा फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एक कोऑपरेशन आपको दिखाई देगा इसमें। और अब आप देखिए तो ये नए तरह का जो संघवाद आपको दिखाई देगा, जिसको मैं कहता हूँ रिवर्स फेडरलिज्म। रिवर्स फेडरलिज्म क्यों? एनपीएस ओपीएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओल्ड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम को राज्यों ने जो राज्य शुरू में एनपीएस लागू कर चुके थे, उसमें भी जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वो सब कह रहे हैं धीरे धीरे कि हम तो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, वो लोग हमको ओल्ड पेंशन स्कीम पे जा रहे हैं। एंड इट हैज क्रिएटेड अ वेरी ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी ट्रिमेंडस प्रेशर। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, इट विल बी एन एग्जांपल ऑफ बैड इकोनॉमी, ये हो ही नहीं सकता, ये है वो। अब मस्ट come to know that central government has also appointed a committee to look into this matter whether it can be, it can be corrected, modified or not. तो आप देखिए इसको हम रिवर्स टाइप ऑफ फेडरलिज्म कहते हैं। पहले सेंटर से जो चीजें जो नीतियां निकलती थी स्टेट से आती थी, अब स्टेट्स के प्रेशर में सेंटर को अपनी नीतियां रिवाइज करेंगे। Isn't it? Agreement in agreement with me or not? पहले बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह कितने सारे मॉडल आपके सामने आ गए संघवाद की। अब थोड़ा फेज वाइज देख लीजिए जो टेंशन एरिया है, कौन से टेंशन एरिया है। शुरुआत जब हुई, जब बना, तो शुरुआत में एक तरह से कल्चरल लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स, कल्चरल लिंग्विस्टिक डिमांड्स राज्यों की, एक भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो,
हमको अलग किया जाए, तमिलनाडु से बार बार आवाज उठती थी, अलग किया जाए, तो उसको रिजॉल्व किया इन्होंने स्टेट्स के और नेशनल कमीशन बना के। उसके बाद 1967 इज सपोज टू बी द वाटरशेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और इसलिए वाटरशेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। पहली बार 1967 में 8 राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार बनी, संवित कहते हैं उसको, एसपीडी गवर्नमेंट, संयुक्त विधायक दल की, और सेंटर में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई, कांग्रेस की सीटें कमजोर हुई, तो इसको वाटरशेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं। उस वाटरशेड ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में आप लोग जब प्रवेश करते हैं 1967 के बाद वाले दशक में, तो जो सेकंड टेंशन एरिया इमर्ज करता है वो है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल मतलब मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, मिसयूज ऑफ गवर्नर, deployment of armed forces unwillingly. The states are not asking for armed forces and they started deploying. तो एक तरह का पॉलिटिकल टेंशन एरिया क्रिएट होता है। फिर जब 80 के बाद केंद्र की भी जब ताकत, आर्थिक ताकत कमजोर होने लगती है, और विशेषकर 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, इन दोनों के आने के बाद, क्योंकि आपको सबको पता है जो पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करती है वही राज्यों को गिरते पड़ते अपने लाना पड़ता है, तो उसका इकोनॉमिक एरिया का टेंशन हुआ। आर्थिक जो संकट का काल शुरू होता है वो तीसरा संकट का काल है, मतलब टेंशन एरिया है। जब राज्य उनसे अधिक धन की डिमांड करते थे, केंद्र कहता था भाई हम आपको नहीं दे सकते, आपके यहाँ मिस गवर्नेंस है। फिर 95 में इसको जोड़ना चाहिए आपको, 95 तक हमने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के आधार पर। तो उससे फिर एक नए प्रकार का टेंशन एरिया इमर्ज करता है, जिसको हम गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज कहते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर जो है सेंटर जो है बार बार किसी भी प्रशासनिक चूक या विफलता का पूरा ठीकरा राज्यों पर मरने लगा। वो कहता है कि नहीं हमने तुमसे ये एडवाइजरी शेयर की थी, स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। चाहे कोई भी नक्सल मूवमेंट हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, कोई भी इस तरह का अटैक हो, तो एक तरह से गवर्नमेंट रिलेटेड इशू आप इसको मानते हैं, जो गवर्नेंस रिलेटेड इशू का मानते। और फिर एक मॉडल आता है हमारे सामने, वो मॉडल है ये जो 2014 के बाद जो टेंशन एरिया आप देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसी। आप देखिए तो आजकल अक्सर जो अपोजिशन स्टेट्स हैं वो या सीएम से वो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये सब जो है हमारे पीछे पड़ी रह रही है। तो कहीं ना कहीं ये टेंशन एरिया नया इमर्ज करके हमारे सामने आया है। अब देखिए थोड़ा सा फैक्ट शीट में बता दें आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है ना? यस पक्का बोलो, लग ही रहा है। चलो तो अब फैक्ट शीट पे आइए कि कैसे सेंटर स्टेट रिलेशन पे हमने शुरू से दिक्कत क्या हुई। स्टार्टिंग से देखिए तो वी डिड नॉट ट्राई टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रोविजन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। मतलब जैसे टेक द एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था लेकिन आपने बनाया कब? सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद 89 में बीपीसी गवर्नमेंट ने बनाया। जस्ट इमेजिन हुआ, वो तो हुआ क्या जब नेहरू आए एज प्राइम मिनिस्टर, तो एक नेहरू के साथ आभा मंडल आया और राज्यों का जो नेतृत्व था वो भी कांग्रेस का था, केंद्र में भी कांग्रेस सरकार। तो एक तरह से समान दलीय होने के कारण दे डिड नॉट मेक एनी एफर्ट टू क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू रिजॉल्व सेंटर स्टेट टेंशन। फिर केंद्र राज्य में तनाव होगा तो उसको हम किस संस्था के माध्यम से सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो उसको एक व्यक्तिगत माध्यम से हमेशा हल करने का प्रयास किया गया। स्टार्ट होता है फजल अली कमेटी से जो 1955 में जो स्टेट यूनाइटेशन कमीशन, उसके बाद अब जो मैं इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स हुए तब बता रहा हूँ। उसके बाद ARC आई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने, उसने बनाया शीतलवाड़ कमीशन। शीतलवाड़ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर DMK गवर्नमेंट ने 1971 में उसने राजा मंदार कमीशन बनाया। ठीक है, इट वाज एन एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉट बाय सेंट्रल। ये जितने आप एक्सरसाइज है। फिर 1971 के बाद 73 में अकाली दल का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आता है।
77 में वेस्ट बंगाल का मेमोरेंडम आता है, ज्ञापन पत्र आता है पश्चिम बंगाल की तरफ से, सॉरी वेस्ट बंगाल की तरफ से व्हाइट पेपर आता है 1977 में। 1980 में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर एनडीसी का बहिष्कार करते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का बहिष्कार करते हैं, ये कहते हुए कि केंद्र की एक लघु संस्था है और इसमें राज्यों का कोई भविष्य नहीं है। वो एनटी रामाराव, फारूक अब्दुल्ला, रामकृष्ण हेगड़े एंड ज्योति बासु, 4 मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, जम्मू कश्मीर के और पश्चिम बंगाल, ये लोग इसका बहिष्कार करते हैं। फिर उसी समय कर्नाटक के रामकृष्ण हेगड़े जो है एक मेमोरेंडम प्रस्तुत करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन दिस टॉपिक ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और ये सब कन्वेट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आप कह सकते हैं टू रिजॉल्व सेंट्रल स्टेट या टू स्टडी डीपली द सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाज द फॉर्मेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन जो 3 मेंबर कमीशन था 83 में आया, 88 में उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। उसी सरकारिया के रिकमेंडेशन में लिखा था कि इंटर स्टेट काउंसिल शुड बी फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल का जन्म हुआ। तो कहीं भी जोनल काउंसिल बनाया गया, जोनल काउंसिल बना स्टेट सिविल ऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे, लेकिन डिफरेंट हर जगह आप पर्सनल रिलेशन से ट्राई टू रिजॉल्व द टेंशन एरियाज बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस वर इग्नोर्ड। दैट्स व्हाई दिस मतलब ऑल दीस इश्यूज, कहीं आप देख लो बॉर्डर इश्यूज है, कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट है, जितने इश्यूज चले आ रहे हैं इंडिपेंडेंट, उन पे भी उन्होंने अभी तक पूरा नहीं कर पाए। फिर सरकारिया के बाद वेंकटचलैया कमीशन आता है 2000, जिसने अपनी रिपोर्ट दी 2002 में, और उसमें 2 वॉल्यूम पूरा सेंट्रल स्टेट रिलेशन और डिवोल्यूशन ऑफ पावर के नोट किया। फिर आता है कुंची कमीशन 2007 और 2010 में कमीशन बनता है, 10 में रिपोर्ट आता है, और उसमें भी बहुत बृहद व्यवस्था उसने की सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बट अफसोस इस बात का है कि केंद्र राज्य तनाव के लिए जो भी रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट भूल पाती है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट फिर आगे उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करती, और इसीलिए आप देखिए तो बीच बीच में केंद्र और राज्यों के बीच जो तनाव है तो कई बार विस्फोटक स्थिति में एक्सप्लोसिव हो जाता है कई बार। अब आजकल तो भाई जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वेस्ट का चल रहा है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस वेस्ट में है तो ये गवर्नमेंट के अपोजिशन कई बार अननेसेसरी सेंट्रल स्टेट रिलेशन को आई मीन उसको आप कह सकते हो कि विशेष है, जो केंद्र राज्य संबंध है उनको कहीं ना कहीं आघात पहुंचाता है। बस आज